तो इससे इससे हमने 60 डिग्री रोटेशन किया, फिर नेक्स्ट 60 डिग्री रोटेशन किया, उसके बाद नेक्स्ट 60 डिग्री रोटेशन किया. In the increment of 60 degree we are rotating the molecule, different molecule. Thus उसका फिर से क्या फॉर्म हो गया था? Same kind of orientation. What was that? Here also can come CH3, H and one by one. In case of 1 and 4, 1 and 4 means what? 1 is fully eclipsed, 1 and 4. You can see two methyl groups lie on the same plane. Two methyl groups lie on the same plane, or two CME bond lie on same plane. In case of Gauss conformation, that is क्या नंबर था? 2 and 6. Dihedral angle between two CME bonds is 60 degree or 300 degree. That is one CME bond slope towards one another. You can see in the second one, the angle is what? 60 degree. 60 degree angle is there. For two Gauss conformation, under two anticlinal conformations. This point is very important. The two Gauss conformation and the two anticlinal. Anticlinal मतलब क्या होगा? Partially eclipsed are non-superimposable mirror images. Two Gauss means 2 and 6. Two anticlinal means 3 and 5. 2 and 6 are identical in energy, but are different conformation.
3 and 5 are identical in energy but are different conformation. One, 3, 5 has torsional strain. Torsional strain means repulsion between bond pair, and van der Waals strain, that is steric repulsion. Steric strain. One has greater van der Waals strain due to repulsion between bulky methyl groups. Two, 4, and 6 has no torsional strain. But 2 and 6 has van der Waals strain. Due to these repulsions, the angle between two methyl groups in Gauss conformation, थोड़ा रिपल्शन होगा अगर मिथाइल के बीच में तो एंगल स्लाइटली बढ़ जाएंगे. Gauss conformation is slightly greater than 60 degrees. Which angle we are talking about here? We are talking about dihedral angle. Dihedral angle is 60 degrees. Dihedral angle we are talking about. At room temperature, in a sample of n-butane लिया मैंने, more molecules possess anti-conformation
and some molecules possess Gauss conformation. This was in last class when I told you the conformation lying at the potential energy minima will be possessed by the molecules. वही उसकी स्टेबिलिटी का रीजन होता है. Factors affecting the stability of conformation. First, torsional strain. क्या था? This strain is maximum किसमें था? In eclipsed due to repulsion between bond pairs on adjacent atoms. Second, van der Waals strain or steric strain the repulsion between. Can you explain what is the van der Waals strain? van der Waals strain का van der Waals radius से relate करिए. van der Waals radius पता है आपको? It is the sum of internuclear distance, half of internuclear distance for two non-bonded atoms in a solid form. So van der Waals radius is generally calculated for ordinate gases. उसी van der Waals वर्ड पे यहाँ पे लाया गया है. स्टेरिक स्ट्रेन स्टेरिक रिपल्शन के फॉर्म में जाना जाता है, ब्लाइंडली हम लोग बोलते हैं. रिपल्शन बिटवीन टू ग्रुप्स or atoms which are at a distance थर्ड आपका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और हाइड्रोजन बॉन्ड. और बेसिकली डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. हाइड्रोजन बॉन्डिंग is also a type of, it can be a type of dipole dipole interaction. This interaction exists in the molecule containing polar bonds. This you should follow this one. तो आप बताता हूँ, एग्जांपल्स आएंगे भी. In such cases, Gauss conformation becomes more stable.
If I talk about एग्जाम्पल ले लेते हैं इस पे, इथिलीन ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल होता है CH2 OH OH। इसमें इसमें पॉसिबिलिटी है क्या कॉन्फॉर्मेशन की? पॉसिबिलिटी है, ABCD यूनिट हो सकता है। If you draw the structure, draw the different conformation, this is gauche, what is anti? OH और OH एंटी हो जाएगा। एंटी कंफर्मेशन है सुपर रोल इन रिएक्शन पार्ट, रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, which is more stable, this one, more stable due to intramolecular H bond। शेर साथ में लिख रहे हो? हाँ। Okay, give one example, second example you can write the same way, कुछ खास करना नहीं है इसको। इन प्लेस ऑफ OH यहाँ पे डाल देते हैं F, तब भी सेम चीजें होगी। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लिया हमने। सर एक बार ऊपर का दिखा सकते हो? हाँ, सर अभी लिखो कि जगह छोड़ना है। मर्जी है आपकी, आप आपको लिखना है लिख लो, ज्यादा तो नहीं है ना, अब इतने स्टार्ट नहीं किया है। नहीं। ओके, तो थोड़ा जगह छोड़ दीजिए, थोड़ा जगह छोड़ दीजिए, तो हो सकता है मैं आपको समझा देता हूँ कुछ एग्जांपल्स और क्वेश्चन देता हूँ, तब तक आप कंप्लीट कर लेना, है ना? ठीक है ना? हेलो, यस सर। ठीक। फोर गॉश इफेक्ट को बाद में एक्सप्लेन करूंगा। फिफ्थ, एंगल स्ट्रेन। ये पहले एंगल स्ट्रेन कर लेते हैं, फिर गॉश इफेक्ट कर लेंगे। एंगल स्ट्रेन में अगर एक्चुअल बॉन्ड एंगल से डेविएटेड बॉन्ड एंगल होगा तो डेफिनेटली मॉलिक्यूल में क्या होगा, एंगल स्ट्रेन होगा। जितना एंगल स्ट्रेन होगा उतनी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। एनी डेविएशन, और ये पढ़ेंगे हम लोग साइक्लिक वाले में, साइक्लिक जो मॉलिक्यूल है, एनी डेविएशन ऑफ एक्चुअल बॉन्ड एंगल from expected bond angle in cyclic molecule
result in angle strain more angle strain, greater reactivity and lesser distability. तो इस पूरे डिस्कशन में सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला था। नेक्स्ट है आपका लास्ट गॉश इफेक्ट। In case of molecule where Gauss conformation is more stable than anti-conformation, the molecule exhibit ये उतना मतलब यूजफुल नहीं है, सबसे यूजफुल वही है हार्ड मॉर्निंग वाला, पर फिर भी क्वेश्चन टफ बनते हैं इससे। एग्जिबिट्स गॉश इफेक्ट। जो ऊपर वाला एग्जांपल भी क्या है, ये भी क्या है, क्या बोलेंगे, गॉश इफेक्ट। तो गॉश इफेक्ट कैन बी ड्यू टू मेनी रीजंस, जैसे ऑर्थो इफेक्ट इज ड्यू टू व्हाट, स्टेरिक इनहिबिशन टू रेजोनेंस एंड स्टेरिक इनहिबिशन टू प्रोटोनेशन, अलग अलग मॉलिक्यूल में अलग अलग रीजन था, बट ओवरऑल नोन एज व्हाट, ऑर्थो इफेक्ट। सेम यहाँ पे गॉश इफेक्ट क्या है, गॉश इफेक्ट इज stability of Gauss is more than 90, so it is known as what, Gauss effect, and it is due to different reason. सबको फिशर ड्रॉ करना आ गया एक्लिप्स से? हाँ आ गया ना, वो आ गया आपको। कॉन्फॉर्मेशन ड्रॉ करना आ गया है आपको, कन्वर्ट करना एक से दूसरे में कन्वर्ट करना आ गया। दे आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। Stability of Gauss conformation may be due to sigma sigma star hyperconjugation। सिग्मा सिग्मा स्टार क्या हो सकता है, बिटवीन जो सिग्मा है दैट इज CH सिग्मा बॉन्ड, और सिग्मा स्टार है वो हो जाएगा किसका, CF बॉन्ड का, CO बॉन्ड का, CN बॉन्ड का भी हो सकता है। सेकंड है नॉन बॉन्डिंग लोन पेयर, बोलते क्या हम लोग, लोन पेयर। लोन पेयर सिग्मा स्टार इंटरेक्शन, हर सिग्मा बॉन्ड के साथ दो ऑर्बिटल एसोसिएटेड होते हैं। हर जब कार्बन जब सिग्मा बॉन्ड बनाता है तो देयर आर टू ऑर्बिटल एसोसिएटेड विद, वन इज सिग्मा जो बॉन्ड बनाया, वन इज सिग्मा स्टार जो वेकेंट रहा, तो वेकेंट के साथ इंटरेक्शन होती है। व्हाट इज दिस बेसिकली, वेकेंट।
सिग्मा स्टार क्या है? वेकेंट। थर्ड है इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। स्ट्रॉन्ग dipole dipole interaction. Again, I will repeat here also. This one is important. This is done already. Discussed. एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल तो हमने कर लिया है। सिग्मा 6 सिग्मा स्टार का एग्जाम्पल लेना। CH2 CH2F ठीक है, इसका हम बनाते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे F लगा देता हूँ, यहाँ पे F लगा देता हूँ, ये बन गया एंटी आपका। तो अगर आप सिन बनाओगे और गॉश बनाओगे तो गॉश में क्या लिखेगा? गॉश में यहाँ पे है F, यहाँ पे क्या आएगा? H। हेलो, ये क्लियर है? हाँ सर। अब क्या देखें, अगर इसको आप इस फॉर्म में बनाते हैं, फ्रंट से अगर देखते हैं, फ्रंट से इसी का वैसे अब क्लैरिटी तो है इसमें, इसी से समझाया जा सकता है, तो वो पिक्चर ज्यादा अच्छा है जब आप ये फॉर्म बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने फ्लोरीन लगा दिया, फ्लोरीन लगा दिया, और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पे फ्लोरीन लगा दिया। दस हाइड्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। ठीक, आप क्या देख रहे हैं, दोनों बिल्कुल सेम बना दिया हमने। ये क्या रहेगा? सिग्मा, और F के अपोजिट क्या रहेगा? सिग्मा स्टार। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहेंगे? सिग्मा में, और ये आपस में इंटरेक्शन करेंगे। अब आप बोलेंगे सर CH बॉन्ड भी तो कर सकता है, बट CF बॉन्ड क्या है? स्ट्रॉन्गर। CF बॉन्ड क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। तो जो जो कार्बन पे डेफिशिएंसी क्रिएट कर देगा ना फ्लोरीन, we can observe such interaction in normal anti conformation also, H के opposite, but because of F, due to high electronegativity of F, electron deficiency on carbon is what? High। उसको फुलफिल करने का काम कौन कर रहा है? बोलो, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ तो क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। ये पार्ट क्लियर हुआ सिद्धांत? हाँ ये सर। सेम चीजें हमने डिस्कस किया ऊपर भी, सेम चीज हमने यहाँ भी डिस्कस की है।
दिख रहा है, एंटी कंफर्मेशन सिग्मा सिग्मा स्टार इंटरेक्शन कर रहे हो, लेकिन एफ रहने से क्या होगा, वो पॉसिबिलिटी और बढ़ जाएंगे, एफ रहने से पॉसिबिलिटी क्या होगा, और बढ़ जाएंगे। सर उसमें तो एंटी में होता था ना वो। हाँ तो नहीं एंटी नहीं होता बेटा, स्टैगर्ड में होता था, हाँ हाँ स्टैगर्ड में होता था, यहाँ पे दोनों ही स्टैगर्ड है ना। हेलो, हाँ सर। और स्टैगर्ड में सी एच बॉन्ड भी, यहाँ भी अगर मैं सी एच लिख के करता, तो पावर चला, पावर ही चला गया बेटा, मैं फोन से कनेक्ट कर रहा हूँ, कनेक्ट किया मतलब। तो यहाँ पे एफ के कारण डिफिशियंसी काफी क्रिएट हो रही है, बिकॉज ऑफ सिग्मा स्टार डिफिशियंसी एंड सी एच बॉन्ड अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे आर इंटरेक्टिंग। ये दोनों क्या है, what are these two? Gauss conformation, पार्टिसिपेशन सी एच बॉन्ड का ही है, हाइपर कॉन्जुगेशन किसका पार्टिसिपेशन होता है, सी एच बॉन्ड का, तो सी एच बॉन्ड यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है। आप ये भी कर सकते थे सर, सी एफ बॉन्ड भी तो करते हैं पार्टिसिपेट रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन में, तो दो डिफिशिएंट साइड तो आपस में इंटरेक्शन नहीं करेंगे ना। व्हाट इज द नेचर ऑफ सी एच बॉन्ड, नेचर ऑफ सी एच बॉन्ड इज व्हाट, डोनेटिंग, नेचर ऑफ सी एच बॉन्ड इन हाइपर कॉन्जुगेशन इज व्हाट, बोलो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। एंड दिस इज अ टफ एग्जांपल, लोग क्या करेंगे, एफ के साथ ही करेंगे, छोटे जो एटम्स हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं उसी के साथ करेंगे, ये डन। क्लोरीन नहीं शो करेगा ये प्रॉपर्टी। आर यू गेटिंग इट? हेलो, यहाँ पे CCl नहीं होगा, और 99% केसेस में आपको एफ ही क्वेश्चन आएंगे, अगर आना होगा तो वो भी नहीं आएंगे। क्लियर है? हाँ तो ये फॉर एग्जाम्पल किया मैंने, एग्जाम्पल 2 लिखते हैं। कौन स्टेबल हुआ, गॉस या एंटी? गॉश। उसको बोलते कौन से हैं, गॉस इफेक्ट। क्या बोलते हैं, गॉस इफेक्ट। कोई भी क्या करेगा, बोलेगा नहीं सर रिपल्शन ज्यादा है तो गॉस कम स्टेबल है। ये यूनिक क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन माना जाता है, टफ माना जाता है, पढ़ने के बाद नहीं आता है। और ये हाइड्रो बॉन्डिंग यूनिक क्वेश्चन है, ये सब लोग पूछते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। सेकंड एग्जांपल देखिए, सर थोड़ा एमईओ, एक मिनट बेटा मैं ऊपर कर लेता हूँ, बोलो। ठीक है ना, एग्जांपल ही लिखना है। हाँ एग्जाम्पल ठीक है। MeO CH2 CH2OMe, सेम डायग्राम बनाइएगा। ओ क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट विल आल्सो द सेम थिंग। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हो नहीं सकती MeO CH2 CH2Me में, पर फिर भी कॉस्ट क्या है, स्टेबल ज्यादा है। आर यू गेटिंग इट? हाँ सर। और इसको एक बड़े आसानी तरीके से आप लिख सकते हो श्रेयस, इसको दिखाने के लिए, CH2 CH F, ये F और ये H, ये दोनों पॉइंट पार्टिसिपेट करेंगे ना आपस में। इसका क्या पार्टिसिपेट करेगा, सिग्मा सिग्मा स्टार, स्टार। और इसका क्या पार्टिसिपेट करेगा, सिग्मा। सिग्मा। सेकंड वाले में सेम एज अबव, आप खुद ड्रॉ करिएगा। सर दूसरे एफ का भी होगा क्या? हाँ हाँ उसका भी होगा ना, सेम सेम लॉजिक, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एंटी है ना, तो एंटी तो रहेगा ही, दो जो बॉन्ड है वो आपस में एंटी है, CH एंड CF बॉन्ड क्या है, एंटी है। हाँ
और अगर थोड़ा क्लैरिटी के साथ लाएंगे तो इसको आप ऊपर बना दीजिए। सर कोई वेटिंग रूम में है। एक मिनट। This is sigma. Here you have to find sigma star. ठीक है, सेकंड भी हो गया, सेकंड सिमिलर है। थर्ड, all these examples are difficult example, all examples. ये कौन सी मॉलिक्यूल है? कौन सी मॉलिक्यूल है बताइए? H2O2। इसमें आपका आएगा नॉन बॉन्डिंग लोन पेयर, नॉन बॉन्डिंग लोन पेयर, कहाँ लिखा तुम्हें नॉन बॉन्डिंग लोन पेयर? ये बॉन्ड नहीं है, बस दिखाने के लिए। बस दिस विल बी मोर स्टेबल देन। बीच में क्या है? ओ है बेटा, वो ओ, और पीछे ओ को दिखाया नहीं है। बस 4 NH2 NH2, फिफ्थ CH2F NH2। और CH2F में किसका सिग्मा स्टार पार्टिसिपेट करेगा? F का। और किसका लोन पे पार्टिसिपेट करेगा? N का। ऑल आर सिमिलर। थर्ड और फोर्थ में, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, थर्ड और फोर्थ में किसका सिग्मा स्टार पार्टिसिपेट करेगा? CH का। CH बॉन्ड, है ना? This here sigma star of CF बॉन्ड, मतलब डोमिनेटिंग हो जाता है।
डन। 6 एग्जाम्पल देखो, इफ आई राइट CH2CH2OH एंड OH, तो इसमें दो चीजें पार्टिसिपेट करेगी, H बॉन्डिंग intramolecular H bonding as well as sigma sigma star hyperconjugation. ठीक है। 7th एग्जाम्पल अगर ले, वही सेम जैसा CH2CH2F, यहाँ पे OH, here also same thing. OH CH2 CH2 NH2, same thing. In all these three, Gauche is more stable than what? Anti. Done. यहाँ पे क्लियर है? हाँ सर। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए आपको देखना है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपस में होती है कि नहीं होती है, तो चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, हाँ बेटा एक मिनट, कॉन्फॉर्मेशंस एंड डाइपोल मोमेंट। ये लास्ट सेक्शन है ओपन चेन कॉन्फॉर्मेशंस का। ये हो गया। नेक्स्ट है कॉन्फॉर्मेशंस एंड डाइपोल मोमेंट। इफ आई टेक, अब सबसे बड़ी बात है डाइपोल मोमेंट किसका निकालेंगे, सिस का सॉरी एक्लिप्स का निकालेंगे, स्टैगर्ड का निकालेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट कमेंट किया यहाँ पे, at room temperature in a sample of N-butane, more molecules possess anti-conformation and some molecules possess Gauss conformation. And eclipse conformations are what? Eclipsed conformations are, क्या लिखेंगे? Negligible, तो उसकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगी। तो जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा, दैट इज कंट्रीब्यूटेड बाय net dipole moment will be contributed by है ना, contributed by what? Conformations, गॉश नहीं दोनों, मतलब नेट की बात कर रहा हूँ। The dipole moment will be decided लिख सकते हैं,
dipole moment will be decided due to contributions of conformation lying at potential energy minima, that is all staggered conformation in staggered. What are the possibility? Gauss, anti, यही है ना, Gauss anti. एग्जाम्पल लेते हैं. If I take example CH2Cl, तो अगर उसका आप एंटी कंफर्मेशन बनाएंगे या सिन बनाएंगे, बोले नॉर्मल बना देते हैं. ये Cl, ये Cl, H, 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 ये कौन सी थी? सिन पेरिप्लिनर था या फुल्ली एक्लिप्स था? इसका म्यू हाँ. क्या होगा? मैक्सिमम होगा. यस सर. लेकिन इसकी कंट्रीब्यूशन क्या होगी? मिनिमम. मिनिमम होगी, तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे. फिर बचता है गॉश. तो गॉश का भी डेफिनेटली क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा, और नॉट मैक्सिमम. और फिर एक बच गया आपका एंटी. नो गॉश इफेक्ट. कौन सा स्टेबल है? एंटी. एंटी स्टेबल है. तो ये हमारा एंटी. यहाँ म्यू क्या हो जाएगी? ऑलमोस्ट 0. 0. इसका नाम है इथिलीन क्लोराइड. ये कैसा क्लोराइड है? विसिनल डाइहैलाइड है. अगल बगल Cl है तो विसिनल डाइहैलाइड होगी. At room temperature, ethylene chloride is found to have very low dipole moment. It means हम dipole moment से प्रूव कर सकते हैं. क्लियर है ना? डाइपोल मोमेंट से प्रूव कर सकते हैं कि मॉलिक्यूल में किसकी परसेंटेज ज्यादा है. This indicates that most of the जो गॉश इफेक्ट्स आया होगा उस जनरेट कैसे हुआ होगा? डाइपोल मोमेंट रिजल्ट से आया होगा. एक्सपेक्टेड कुछ और हो रही होगी. हेलो अविंती, मैं भूल गया बेटा, आपको एग्जांपल दिखाना. एग्जांपल कौन सा देखने के लिए?
नहीं सर, मैंने पूछा था ऊपर के लिए जगह मैंने नहीं लिखा था, मैंने अच्छा छोड़ दिया एक पेज। चलेगा ना, ठीक है ना, तो समझते चले गए। एग्जाम देखो पूरे डिस्कशन में बता दूं, आपके टेस्ट में क्वेश्चन क्या आएंगे, गॉस और एंटी में स्टेबिलिटी पूछेंगे। तो एंटी इज मोर स्टेबल। फिर गॉस कब स्टेबल हो सकता है, देयर आर मेनी केसेस, और उसमें भी कौन सबसे इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आपके जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं दैट इज एक्सपेक्टेड, ठीक है ना। हेलो, यस सर। डाइपोल मोमेंट is found to increase with increase in temperature। क्यों बताओ तो जरा। बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। बॉन्ड लेंथ नहीं, बॉन्ड लेंथ तो ठीक है बेटा, और क्या होगा, गॉस की स्टेबिलिटी अगर ज्यादा है, सॉरी एंटी की स्टेबिलिटी अगर ज्यादा है तो उसकी एनर्जी क्या है, कम। लेस एनर्जी। तो आप उसको एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, किसकी तरफ शिफ्ट होगा, गॉस की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, है ना। हाँ। इंडिकेट्स with increase in temperature number of molecules in gauze conformation increases। ये हो गया इफेक्ट ऑफ डाइपोल मोमेंट। सेकंड वो क्या है, या इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डाइपोल मोमेंट कह सकते हैं। इन पोलर सॉल्वेंट सर वो डी के पहले 1 है ना? कहाँ पे, हाँ वन 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 डिबाई, डिबाई याद है ना, हाँ सर। डिबाई से यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट। बोलो सर व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर परसेंटेज एनी करेक्टर। बोलो। एक्सपेरिमेंटल अपॉन थेरोटिकल इनटू 100। ठीक है, व्हाट इज द theoretical dipole moment formula, simplest formula, theoretical dipole moment formula। क्यूडी। हाँ उसको सिंप्लीफाई करके क्या लाया था मैंने, इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड लेंथ। वो सर नहीं आता है। किसको याद है, किसी को याद है। नो वन। 4.8 इंटू बॉन्ड लेंथ इन एंगस्ट्रॉम, डायरेक्टली निकालने के लिए। डायरेक्टली किस में आ जाएगा, ये डिवाई में आ जाएगा, है ना। देखिए अब ये डिस्कशन जितना हुआ डायपोल मोमेंट पे, एक छोटा सा न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल तो नहीं कहेंगे, क्वेश्चन आया था, न्यूमेरिकल जैसा क्वेश्चन। म्यू नेट, म्यू नेट का मतलब टोटल निकालने की बात कर रहा है।
summation mu I xi. What is mu I? Dipole moment of stable conformation. Stable conformation, they are referring to what? staggered. Staggered. Simply staggered बोल सकते हैं आप, पर staggered में भी मेरे पास दो हो जाते हैं, तो lying at potential energy उतना समझा के नहीं लिखा था बेटा, वो तो मैं लिख रहा हूँ, तो एज अ थ्योरेटिकल पार्ट समझो। xi क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन। व्हाट इज स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन? अगेन स्टैगर्ड की बात कर रहा हूँ, लाइंग एट पोटेंशियल मिनिमा की बात कर रहा हूँ। दैट इज म्यू नेट, द नेट डायपोल मोमेंट ऑफ दैट मॉलिक्यूल। कोई डाउट? No, sir. ये बता दिया मैंने आपको। Mu net equal to summation mu I xi for a molecule CH2 CH2Z CH2 CH2Z, and at xi is the word mole fraction of stable conformation. क्वेश्चन है, draw on stable conformation, मतलब you have to draw what? Eclipsed and staggered. If mu net को आप mu observe भी कर सकते हैं, mu observed mu net और observed dipole moment. If mu net is 1 dB and x and t is 0.8, calculate mu Gauss. Third, compare the stability of stable conformations. What is the stable conformation? Gauss and anti. ठीक है क्या बेटा? अब निकाल तो लोगे ही, फट 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 है ना? हाँ। तो पहले फर्स्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट आंसर विल बी, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। एक आपका यहाँ पे क्या लिख दो, Z H ये आंसर हो गया हमारा। दो पॉसिबिलिटी हो गए, एक क्या होगा एंटी, दूसरा क्या होगा गॉश। बी में न्यू नेट डायपोल मोमेंट दे दिया,
ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट दे दिया, तो म्यू नेट क्या लिखेंगे पहले? तो म्यू नेट क्या लिखेंगे? μ1 x1 μ2 x2 लिखोगे, पर दो ही पॉसिबिलिटी है स्टेबल के, एंटी और गॉश, तो सिंपली क्या लिख सकते हैं? म्यू नेट विल बी, क्या लिखूं? म्यू एंटी mu anti x and इंटू एक्स एंटी प्लस mu gauss into x. म्यू गॉश इंटू एक्स गॉश। अब गिवन क्या है? म्यू नेट इज गिवन, म्यू एंटी इज 0.8 और समेशन ऑफ म्यू एंटी, summation of x, summation of mole fraction x anti plus x gauche will be 1. So x anti is given to you, x gauche is what? 1 minus 0.8. That is 0.2. हेलो, क्लियर है? Yes, अब sir. वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 1 इक्वल टू म्यू एंटी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू एंटी? 0. म्यू एंटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्यों 0 हो जाएगी? बिकॉज अपोजिट है, कैंसिल हो जाएगा। तो 1 इक्वल टू 0 इंटू 0.8 प्लस, और क्या गिवन था? 0.2 into mu gauss. हाँ, तो म्यू गॉश इंटू 0.2। फ्रॉम दिस म्यू गॉश की वैल्यू क्या हो गई? 5d। तो म्यू गॉश 5d है, पर नेट फिर भी क्या है? 1 है। मतलब कंट्रीब्यूशन किसकी ज्यादा है? एंटी की Anti. मिक्सचर में। और वैसे ही मोल फ्रैक्शन, इफ यू कंपेयर मोल फ्रैक्शन ऑफ एंटी is 0.8, mole fraction of gauche is 0.2, that is x gauche is less than x anti, therefore क्या लिख सकते हैं? gauche is less stable than anti। वो जिसकी परसेंटेज ज्यादा है उसी की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। क्लियर है? Yes. कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ स्टेबल कॉन्फॉर्मेशंस एट रूम टेम्परेचर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो ये हमारा ऑलमोस्ट सभी जो क्या कहते हैं ओपन चेन कंफर्मेशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हो गए। In the Newman projection for 2,2-dimethyl butane, यहाँ पे मैंने x लगा दिया, यहाँ पे y लगा दिया, x y अननोन है। CH3 CH3 H H, ठीक है। x and y are H and H, B
H C2H5 C C2H5NH D CH3 and CH3 बताइए। D बी। अब मल्टीपल चॉइस है, हाँ। मोर देन वन करेक्ट। बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कोई टफ थ्योरी नहीं है, बेसिक एनसीईआरटी थ्योरी है। मुझे एक सेंट्रल बॉन्ड बनानी पड़ेगी, है ना। क्वेश्चन ड्रॉ कर लेता हूँ पहले। बताया आंसर उसका। डी। डी तो सही है, और बी कौन एंड सा डी। चेक चेक करिए, चलो बी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है, बी ओके। एंड डी। इसको नहीं आ रहा है फिर ये पूछेंगे नहीं, वो चेक करेंगे। देखिए टेबल फिलअप करिए, एक एक जो दो बता दीजिए, आगे को पता चल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। बताइए, फर्स्ट में एफसीसी बी आर, बोलो। फर्स्ट में एफसीसी बी आर क्या डायरेक्ट एंगल है? 180। 180। एक बता देंगे काफी है, एक या दो बता देंगे काफी है, 180। सेकंड में एफसीसी बी आर में क्या है? 120। एफसीसी सीएल में 60। 60। अब आसान है, एफसीसी सीएल में 0। 0। आगे का आप कर लेंगे, मैं नहीं बता रहा, जस्ट प्रैक्टिस थोड़ा सा ले लिए। डन। हेलो, यस डन, सर। ठीक है। एक होमवर्क,
ड्रॉ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस। कुछ नहीं करना है, आप डायरेक्टली आंसर बता सकते हैं किससे मैच करेगा, तो क्या चेंजेस करनी पड़ेगी। एनालिसिस ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल। इथिलीन ग्लाइकोल को सिर्फ ग्लाइकोल भी कहते हैं। क्या फॉर्मूला है? ये आपकी होमवर्क रहेगी। इट विल बी सिमिलर टू विच मॉलिक्यूल बेटा, बोलो जल्दी क्विक। हाँ, इथिलीन फ्लोराइड। इथेन कैसे? ब्यूटेन ना, एन ब्यूटेन। मिथेन जैसा ही है ना। सर पर ब्यूटेन में तो एंटी ज्यादा स्टेबल होगा ना। हाँ तो सिमिलर कहा बेटा, तो ग्राफ में क्या चेंजेस आएगी? अगर हम लोग आलसी गॉश हैं, वाला ज्यादा नीचे जाएगा। आलसी हैं, आलसी अगर हैं तो डायरेक्टली हम लोग क्या बोल देंगे, सर क्या ही है इधर, इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें इस ग्राफ में ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा हाँ और ये ऐसे आएगा, है कि नहीं बताओ सब लोग? यस सर। बस, तो गॉश वाला कम स्टेबल, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा और एंटी वाला कम स्टेबल हो जाएगा। क्लियर है? यस ओके। एक और होमवर्क, होमवर्क ही देना, आपकी तो ओपन जगह खत्म ही हो गया। और ठीक है। If उसी तरह क्वेश्चन, एक तो काफी है, एक तो कर लेंगे काफी है। is a conformation of isopentane, then the option is there, बस find possible sets of x and y। आइसोपेंटेन पता है, मैं नहीं बताऊंगा, वो आपको काम करना है, ठीक है ना, कर लेंगे। हाँ ऐसे ही क्वेश्चन आप 50 लिख लीजिए, आप खुद से लिख सकते हैं। और सिंपली कैसे लिखोगे बताता हूँ आंसर। आंसर नहीं लिख रहा मैं, बता रहा हूँ, याद नहीं करना है कुछ भी। याद करना है कैसे? नहीं कुछ भी याद नहीं करना है। अगर मैं आपको याद करने के लिए बोलूँ भी तो आपको मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि एक्लिप्स में वाई वाई रहता है, उससे फिशर बनाना आपको आना चाहिए, और फिशर दिया हुआ है तो उसे आपको एक्लिप्स बनाना चाहिए, एक्लिप्स स्टैगर्ड बनाना चाहिए मेथड। और आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण स्टेबिलिटी ऑफ गॉश बढ़ जाती है। एडिशन टू दैट वी आल्सो स्टडी सिग्मा सिग्मा स्टार इंटरेक्शन, हाइपर कॉन्जुगेशन इंटरेक्शन। पॉसिबल सेट्स आर एक्स वाई। लिखेंगे, लिखेंगे ऐसे ऐसे बना के लिखेंगे।
क्वेश्चंस हैं, सभी क्वेश्चंस हैं देखा जाए तो। ड्रॉ मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन। अब ये सब क्वेश्चन दूं या ना दूं फर्क नहीं पड़ता, इसकी सारी थ्योरी हो चुकी है, जस्ट फॉर प्रैक्टिस। 1,2 डाइक्लोरो इथेन, और इसी का नाम क्या है? इथिलीन डाइक्लोराइड। सेकंड, जनरली एंटी स्टेबल होते हैं। 1,2 डाइब्रोमो इथेन, 1,2 डाइफ्लोरो इथेन, नियोपेंटेन, ऑल ओवर फॉर प्रैक्टिस। आप क्या कर सकते हैं, आप बहुत आलसी बन सकते हैं, तो अब क्या करेंगे, सबका नॉर्मल मॉलिक्यूल बनाएंगे, बॉन्ड ऐसे ऐसे से बना लेंगे और एक ही मॉलिक्यूल लिख देंगे, उसी पे आप चेक कर सकते हैं अलग अलग। पर कोशिश करिए सब बना ही लीजिए, एक एक बनाना पड़ेगा। 2,2,3,3 टेट्रामिथाइल ब्यूटेन, सर हाँ बोलो बेटा। पर वो किसको फ्रंट और किसको रियर लेके बनाना है? तुम्हारी मर्जी ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। मॉलिक्यूल बदलने वाला है, कोई बदलने वाला नहीं है ना, इट्स योर चॉइस, कुछ भी कर सकते हैं। फ्रंट और बैक तो इट्स जस्ट अ वे ऑफ विजुअलाइजेशन ना, कि किसको हम फ्रंट रख रहे हैं। वी कैन कीप एनीथिंग ऑन फ्रंट, वी कैन कीप एनी टू ग्रुप्स ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन आउट ऑफ 4 ग्रुप्स इन द फिशर प्रोजेक्शन, डिपेंडिंग ऑन आपका विजुअलाइजेशन क्या है, ठीक है ना। हाँ सर। जब वो कह रहा है स्टेबल कन्फॉर्मेशन, so they are expecting what, lying at potential energy minimum, lying at potential energy minimum। वो आसान तरीके से स्टार्ट कर लेते हैं। CH3 CH2Z
यहाँ पे कुछ ऐड कर देते हैं। ठीक है श्रेयस, इतने एग्जांपल्स कर सकते हैं, ट्राई करिएगा इतने एग्जांपल। इतने सारे एग्जांपल्स श्रेयस, ट्राई करिएगा सब लोग। अब डायरेक्टली बगल क्वेश्चन बनाएंगे, आप सब सॉल्व करेंगे, उसके बगल